हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया जा चुका है। उससे आगे कंटिन्यू आज करेंगे। ओके बेटा, आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज and they are separated by very small distance, it's called electric dipole. Another form में भी हम कह सकते हैं a pair of minus q plus q separated by very small distance where 2a is small very small. A pair of equal and opposite charges and they are separated by very small distance, it's called electric dipole. टू चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक एग्जांपल देखिए, HCl H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस, H2O H प्लस OH माइनस। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल magnitude of either charge and distance between them, it is denoted by P. So P equal to Q into 2a. 2a is very small distance. Very small distance as a straight line has vector property, directed property. So a vector, so P electric dipole moment is also vector quantity. तो हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. Again listen to me, the electric dipole moment is thus the product of magnitude of either charge and displacement vector from negative charge to positive charge. That's clear. अब देखिए बेटा, SI यूनिट चार्ज के लिए हम क्या कह सकते हैं, कूलाम टू ए डिस्टेंस मीटर, कूलाम इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला कूलाम A1 T1 मीटर L1, तो फाइनली M0 L1 T1 A1। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड denoted by capital D. 1 divide equal to 10 raised to the power minus 10 Franklin into 1 angstrom. You know that 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to the power 9 SU or state coulomb or Franklin. So 1 Franklin is equal to 1 coulomb upon 3 into 10 raised to the power 9. 1 angstrom is equal to 10 raised to the power minus 10 meter. That's clear. तो अब देखिए बेटा, वन डिवाइड इक्वल टू 10 raised to the power minus 10 Franklin 1 coulomb upon 3 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power minus 10 meter. So 0.33
divided by 3.33 into 10 raised to the power minus 29 coulomb into meter. 1 divided. Convenient. Convenient. Unit of vector. Electron nanometer. Electron nanometer. So 1 electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Nano means 10 raised to the power minus 9 meter. So 1.6 into 10 raised to the power minus 28 coulomb into meter. That's clear बेटा. तो आप देख सकते हैं SI unit of electric dipole moment Q into 2A coulomb into meter. Its dimensional formula coulomb A1 T1 meter L1. Finally M0 L1 T1 A1. Practically unit of electric dipole moment debye 1 debye is equal to 10 raised to the power minus 10 Franklin into 1 angstrom. 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to the power 9 Franklin. So 1 Franklin is equal to 1 coulomb upon 3 into 10 raised to the power 9. 1 angstrom 10 raised to the power minus 10 मीटर. ये वैल्यूज हम पुट करेंगे सॉल्व करने पर 0.33 into 10 raised to the power minus 29. Convenient unit of electric dipole moment electron nanometer. Electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Nanometer 10 raised to the power minus 9 meter. So 1 coulomb is equal to 10 raised to the power minus 28 coulomb into meter. Electric dipole moment is a vector quantity. Its direction from negative charge to positive charge. तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P vector is a vector quantity. Vector quantity. Its direction from negative charge to positive charge. Its direction from negative charge to positive charge. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा. इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब आप स्टडी करेंगे एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा. इससे पहले आप देखेंगे आइडियल स्लैश पॉइंट डाइपोल. आइडियल स्लैश पॉइंट डाइपोल, you know that P vector is equal to Q into 2A vector. If Q tending to infinite and 2A tending to 0, then P is equal to Q into 2A finite. ये वैल्यू फाइनाइट होगी. In this case, electric dipole is said to be point or ideal dipole. You know that electric dipole moment P vector is equal to Q into 2A vector. If Q is tending to infinite means large charge का amount very large. Charge बहुत ही large है. Distance between them tending to 0, very small, near about 0, closer to 0. तो P इक्वल टू Q इंटू 2A क्या होगा बेटा? फाइनाइट वैल्यू होगा. इन दिस केस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज said to be point plus ideal dipole. In this case, electric dipole is said to be point or ideal dipole. That's clear? Okay बेटा. अब देखिए axial line of dipole plus Q minus Q. Axial line तो हम क्या कहेंगे बेटा? द जॉइनिंग लाइन
the joining line between both charges, the joining line between both charges of dipole, the joining line between both charges of dipole is called axial line of dipole. The direction of axial line from negative charge to positive charge. Axial line का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम. तो एक्सियल लाइन पर आपको कोई भी स्टडी करनी है तो हम लोग नॉर्मली स्टडी पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, स्टडी पॉइंट को हम राइट हैंड साइड में लेते हैं. तो नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल ऑलवेज टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एक्सियल लाइन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, इक्वेटोरियल लाइन. देखिए बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्या आपका एक्सियल लाइन हो गया ए बी. एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन. a perpendicular line passing through the midpoint of axial line, a perpendicular line passing through the midpoint of axial line is called equatorial line. Okay, तो आप लोग समझ गए होंगे. गॉट इट बच्चों. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? You know that a pair of equal and opposite charges, means total charge of dipole minus q plus q is equal to 0. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज ऑलवेज हमेशा क्या होगा बेटा? 0. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल, अ डिस्टेंस बिटवीन H plus and Cl minus hydrogen ion and chlorine ion in HCl molecule is 1 angstrom. Determine the electric dipole moment. तो देखिए बेटा, H plus Cl minus, distance between them 2a is equal to 1 angstrom. So 1 angstrom is equal to 10 raised to the power minus 10 plus minus q is equal to plus minus e. हमें मॉड लेना होता है तो 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. डिस्टेंस 2a, 1 angstrom, 10 raised to the power minus 10 मीटर. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ बेटा आपका? P Q into 2a. सारा वैल्यू जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारा वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, 10 raised to the power minus 10. तो 1.6 into 10 raised to the power minus 29 कूलम into मीटर. कूलम into मीटर. ओके बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये. एक बार नोटिस करें आप इसको. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, EFI at a point, EFI at a point on axial line of dipole. तो देखिए बेटा, अभी प्रीवियस उसमें मैंने आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल लाइन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. आपको एक्सियल लाइन पर स्टडी करना है तो स्टडी पॉइंट हम नॉर्मली राइट हैंड साइड में लेते हैं. तो नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट कंसिस्ट with equal and opposite charges and they are separated by very small distance. A point S at a distance OS is equal to small r on axial line, where calculate the EFI. Again listen to me. Let us consider an electric dipole consist with equal and opposite charges and they are separated by very small distance 2a. A point S on axial line of dipole at a distance OS is equal to small r, where calculate the EFI. तो देखिए, you know that intensity of electric field due to point charge kq upon r square. तो EFI फाइंड करने के लिए आपको ओनली वन चार्ज का रिक्वायरमेंट है. डाइपोल में कितने चार्ज हैं भाई? 2 चार्जेज. तो दोनों चार्जेज के लिए हम इंडिविजुअली सेपरेटली EFI फाइंड करेंगे.
बाय यूज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए EFI एट पॉइंट S ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यू नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ट्स एट नेगेटिव चार्ज, इनवर्ट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये आपका हो गया बेटा E1 वेक्टर। तो देखिए EFI at a point due to charge minus Q, E1 नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज emerged इन द डायरेक्शन, चार्ज का नेगेटिव साइन जो है ये डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। KQ in your mind R square, R means distance of steady point from corresponding charge, distance of S from negative charge, R plus A whole square belongs to SA direction from S to A. Okay, Fi at a point S due to plus Q, you know that electric lines outwards from positive charge, away from the steady point. E2 KQ in your mind R square, distance of steady point S from positive charge, देखिए ये R है, R minus A whole square along to BS डायरेक्शन, yes डायरेक्शन। आप देख सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको ग्रेटर क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा और देयर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ग्रेटर क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो E1 E2 में से देखिए न्यूमरेटर तो बेटा दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ R प्लस ए से डिवाइड है, यहाँ R माइनस ए से, तो R प्लस ए इज ग्रेटर देन R माइनस ए। ओके, R plus A is greater than R minus A, then E2 is greater than E1। तो नेट EFI क्या होगा बेटा, नेट EFI is equal to E2 minus E1, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस ए होल स्क्वायर, KQ हम कॉमन लेंगे टेकिंग एलसीएम लेंगे, तो देखिए बेटा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर इंटू R माइनस ए होल स्क्वायर। आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स क्लियर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में देखिए बेटा आर प्लस ए आर माइनस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर में ए माइनस ए कैंसिल, आर माइनस ए आर माइनस आर कैंसिल, यहाँ क्या हुआ बेटा 2r, यहाँ क्या हुआ 2a, दैट्स क्लियर। लेट्स सी E इक्वल टू KQ 2r 2a r square minus a square whole square, you know that Q into 2a electric dipole moment, so twice of KP r upon r square minus a square whole square in vector form r cap। Question number 3rd, you know that small r is greater than a, then a square upon r square must be taken negligible, E vector equal to twice of KP r स्क्वायर कॉमन लीजिए बेटा, यहाँ होल स्क्वायर है तो ये 4 होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट्स क्लियर। E वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KP r अपॉन
R4 1 माइनस ये नेग्लिजिबल हो गया बेटा। तो देखिए R से R4 को कैंसिल करेंगे, R क्यूब E वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ KP अपॉन R क्यूब R कैप। You know that electric dipole moment is a vector quantity, its direction from negative charge to positive charge. Okay बेटा, तो हम राइट हैंड साइड से आर कैप को रिमूव करें तो एरो हेड पावर टू पी, एरो हेड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पी पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये एनालिसिस करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो कोई चेंज नहीं करना होगा, एज इट इज एरो हेड लगाए अप्लाई कर देंगे। अगर डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो उसके लिए अनदर बेसिक थ्योरी से कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो आप मेन डायग्राम में आ जाइए। देखिए नेट ई एफ आई आपका क्या है बेटा, ई टू माइनस ई वन, तो ई वन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ई टू, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी रिमेनिंग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसके बचेंगे, ई टू के। तो ई टू का डायरेक्शन क्या है बेटा, देखिए बी टू एस, डायरेक्शन ऑफ ई टू बी टू एस मीन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ ई एफ आई फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज and direction of electric dipole moment from negative charge to positive charge means direction of intensity of electric field and direction of magnetic dipole moment, sorry electric dipole moment दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्टली एरो हेड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप एरो हेड अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट आ गया, दैट्स क्लियर। ओके बेटा, आप समझ चुके होंगे सभी अच्छे से, एक बार और नोटिस कर लें इसको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट EFI, EFI at a point on equatorial line of dipole, EFI at a point on equatorial line of dipole। देखिए बेटा, let us consider an electric dipole consist with equal and opposite charges, consist with equal and opposite charges देखिए बेटा, let us consider an electric dipole consist with equal and opposite charges and they are separated by very small distance. A point S on equatorial line at a distance OS equal to small r, where calculate the EFI. You know that for determination of EFI we need only one charge, dipole consists two charges, so we obtain calculate the EFI at a steady point individually due to both charges। बेसिक थ्योरी से EFI फाइंड करने के लिए आपको वन चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है, डाइपोल टू चार्जेज से कंसिस्ट है, तो हम इंडिविजुअली दोनों चार्जेज के लिए EFI फाइंड करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी से उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो EFI एट पॉइंट S, EFI एट पॉइंट S ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यू नो दैट इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ट्स at negative charge, EFI at point S due to charge minus Q, E1 negative charge, negative sign of charge, negative sign of charge emerged in the direction of corresponding quantity vector quantity। नेगेटिव साइन कहाँ इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन में। In your mind, Q upon R square, R means distance of a steady point from corresponding charge, a S square. Its direction belongs to SA vector. EFI at point S due to charge plus Q. You know that electric lines outwards from positive charge
away from the study point. E2 is equal to KQ upon BS square belongs to BS वेक्टर. ओके बेटा, किया गया. अब देख सकते हैं ट्राइंगल OAS एंड OBS. OA is equal to OB, OS कॉमन साइड बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. AS is equal to स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर is equal to BS मीन्स E1 KQ अपॉन AS स्क्वायर. इसका वैल्यू पुट करेंगे बेटा, रूट हट जाएगा. E2 means E1 and E2 both having same magnitude and different directions. So their resultant we obtained rectangular component. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इनके कंपोनेंट्स हमको फाइंड करने होंगे. ओके बेटा, ट्राइंगल OAS एंड OBS. OA इज इक्वल टू तो देखिए बेटा E1 एंड E2, सॉरी बच्चों एक फोन आ गया था बीच में. तो E1 एंड E2 बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. तो देखो OS कॉमन साइड है, OS के इन फ्रंट का ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. फर्स्ट कंपोनेंट दोनों के मिड बेंच से पास होगा, थीटा ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा. ये क्या हो गया, E1 cos थीटा, और ये क्या हो गया बेटा, E2 cos थीटा. इधर ये देखिए E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा. तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, both having same magnitude, and opposite direction, so they are cancel out each other. तो इनका रिजल्टेंट तो क्या हो गया, जीरो. E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एल्जेब्रिक सम के इक्वल. You know that when two or more than two quantities are in same direction, so their resultant is always equal to the algebraic sum of individual quantities. So net EFI is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E2 रिप्लेस बाय E1, तो ट्वाइस ऑफ E1 cos ऑफ थीटा. E1 तो आपने फाइंड कर लिया, cos थीटा किसी भी ट्राइंगल से ले लें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या हुआ, OA, हाइपोटेनियस AS, OA स्मॉल a, AS R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर रूट मीन्स होल पावर 1/2. ये वैल्यू हम पुट करेंगे. E1 KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 1/2. तो देखिए 2 को A के साथ सेट कर लीजिए, Q इंटू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो E इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2 इन वेक्टर फॉर्म R कैप. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्मॉल r इज ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हम नेग्लिजिबल ले लेंगे बेटा, नेग्लिजिबल. E वेक्टर इक्वल टू KP, R स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ 3/2 है तो ये R क्यूब, 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल पावर 3/2 R कैप.
E vector equal to kp r cube 1 plus 0 whole power 3 by 2 r cap. ये नेग्लिजिबल हो गया ना बेटा, तो kp अपॉन r क्यूब r cap. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम r cap को रिमूव करें तो एरो हेड p पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने बताया था आपको डायरेक्शन के लिए एनालिसिस करना होगा. यहाँ देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ नेट EFI E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मीन्स पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. तो नेट EFI का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो E वेक्टर एंड P वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको एरो हेड P पर लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाना होगा. यू नो दैट. जैसे ये कोई ए वेक्टर है, अब इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दें तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो P के साथ में हमने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. P क्या है? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करके नेगेटिव अप्लाई किया. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, FTP फाइनल टच पॉइंट्स EFI at a point on axial line twice of kp upon r cube, EFI at a point on equatorial line kp upon r cube. So from equation first and second, the axial line twice of the equatorial line. EFI at a point on axial line of dipole is twice of EFI at a point on equatorial line. ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू.